Question number 1 is discuss the historical reason for the formation of trade union, which is known as workers' combination, emphasizing their relevance in the Industrial Revolution. Historical reason for the formation of trade union or workers' union or workers' combination. The formation of workers' combination has historical roots in the Industrial Revolution and the subsequent labor movement. Several key historical reasons contributed to the formation of these worker organizations. First is poor working condition. During the Industrial Revolution, workers faced harsh and unsafe working conditions in factories and mines. Long hours, low wages, and lack of job security were common, leading to dissatisfaction amongst workers. Second, lack of legal protection. In the early stages of industrialization, there were minimal or no labor laws to protect workers' rights. This lack of legal protection allowed employers to exploit labor without facing consequences. Third, inequality and exploitation. Workers, especially in the lower strata of society, were often subjected to exploitation by employers who held significant power and control over the means of production. This led to economic inequality and social injustice. Fourth, absence of collective bargaining. Individual workers had little bargaining power when negotiating with employers. This lack of collective bargaining power meant that workers had limited ability to demand better wages, working conditions, or benefits. Sixth, inspiration from social movement. The rise of social and political movements such as socialism and anarchism inspired workers to unite and fight for their rights collectively. These movements advocated for the empowerment of the working class and redistribution of wealth. Question number 2. Explain the objective of the International Labour Organization and its role in shaping global labor laws. The four strategic objectives of the ILO is: first, to develop and effectuate standards, fundamental principles, and fundamental rights at work. Second, to ensure that men and women have equal access to decent work while enhancing opportunity for the same. Third, to magnify the coverage and effectiveness of social protection for everyone. Fourth is to strengthen tripartism and social dialogue. The ILO works to promote social justice at the workplace as it believes that social justice is the key to lasting peace. It also promotes employment generation and the concept of decent work while adhering to international labor and human rights. Question number 3. Define collective bargaining. Discuss its importance and challenges in the Indian context. A collective bargaining is a process that allows workers to negotiate with their employers regarding the terms and conditions of their employment. In India, collective bargaining is recognized as a fundamental right of workers and is protected under the Industrial Relations Code 2019. However, the process of collective bargaining in India is complex and often challenging, particularly in sectors where unionization rates are low. I have explained below the challenges and opportunity of collective bargaining in India. The right to collective bargaining. The right to collective bargaining is a fundamental right of workers in India. It is recognized under the Industrial Relations Code 2019.
which provides workers with the right to form trade union and engage in collective bargaining with their employers. The code also provides for the registration of trade union, which allows them to represent the collective interest of their members in a negotiation with the employer. Collective bargaining in India typically involves negotiation over wages, working hours, working conditions, and other employment related matters. Challenges of the collective bargaining in India. Despite the recognition of the right to collective bargaining in India, there are several challenges that workers and trade unions faces in the process of negotiating with their employers. These challenges include the low rate of unionization, the unequal bargaining power between worker and employer, and the lack of legal protection for informal sector workers. Low rate of unionization. One of the main challenges facing collective bargaining in India is low rate of unionization, with only about 10% of workforce being unionized. Opportunities for collective bargaining in India. Despite the challenges facing collective bargaining in India, there are also opportunities for workers and trade unions to strengthen their bargaining power and negotiate better terms and conditions of employment. Increasing unionization rates. One of the ways to strengthen collective bargaining in India to increase unionization rates. This can be achieved through the establishment of trade union in the informal sector and by providing legal protection for informal sector workers. Moreover, efforts should be made to promote the benefit of unionization among workers and encourage employers to recognize trade unions and engage in collective bargaining. Question number 5. Explain the role of trade union in protecting workers' rights. The roles of trade union in protecting workers' rights in India are given below. First is collective bargaining. Collective bargaining is the process of negotiating terms such as salaries, working hours, and working conditions between trade union and employer. In this discussion, trade union stands in for the workers and fight to improve terms of pay, benefit, and working condition for its member. Second is legal representation. Workers who experience unfair treatment from employer might obtain legal protection through trade union. To guarantee that workers' rights are upheld, they could offer legal counsel, court representation, and other sort of assistance. In India, trade union also fight to protect workers from employer exploitation and to guarantee that labor laws are upheld. Third is advocacy. At the municipal, state, and federal levels, trade unions fight for better working conditions and workers' rights. They promote awareness of issues affecting employees and try to influence legislation and public policy to enhance working conditions. To ensure that labor laws are implemented and upheld to defend workers' rights, trade unions in India collaborate with the government and other parties. Fourth is safety and health. In order to provide workers with secure and healthy working conditions, trade unions are essential. In order to prevent accidents and injuries, they collaborate with the employer to put safety measures into place, such as offering protective gear and training. In India, trade unions also fight to guarantee that employees have access to health care and support in event of illness and injury sustained at work. Fifth, education and training. In order to improve its member abilities and knowledge,
Trade unions offer them education and training. Employees benefit from increased job possibilities and higher pay, and employers benefit from having the labor they require. In India, trade unions fight to guarantee that employees have access to training and educational opportunities that will improve their capabilities. Sixth and last, social security. Trade union fight for the social security benefit including health insurance, provident fund and gratuity for employees. They assist employees in gaining access to these perks. In India, labor union collaborate with the government and other party to the situation to guarantee that worker have access to social security benefits. Question number 8. Analyze the significance of the Bangalore Water Supply and Sewerage Board versus A. Rajappa 1978 case in defining industry under labor laws. Title of this case: Bangalore Water Supply and Sewerage Board versus A. Rajappa. Fact of this case: the appellate board in Bangalore water supply case imposed Fact of this case: the appellant board in Bangalore water supply imposed fine on the respondent employees for instances of misconduct and successfully recovered various sums as penalties. In response, the employees initiated claims under Industrial Dispute Act, asserting that the disciplinary action taken against them has transgressed the principle of natural justice. The appellate board raised a preliminary objection before the labor court, contending that the board, being a statutory body responsible for providing essential amenities to citizens, essentially fulfill a sovereign function and therefore does not qualify as an industry as defined under Section 2J of Industrial Dispute Act. Consequently, it was argued that employees were not classified as workmen. That is why challenging the jurisdiction of the labor court to adjudicate upon the employee's claim. Despite the board's objection, the labor court ruled in favor of the employees. Subsequently, the appellant board submitted two writ petitions before Karnataka High Court. The division bench of Karnataka High Court dismissed the petition of the appellant board and stated that it is fall under the definition of industry as defined Section 2J of the Industrial Dispute Act. Issues of this case: the main issue in Bangalore water supply case was whether Bangalore Water Supply Board is fall under industry or not, and what is covered under Section 2J of Industrial Dispute Act under industry. Judgment of this case: in Bangalore water supply case, a 7-judge panel of the Supreme Court conducted a comprehensive examination of the scope of industry. The majority decision endorsed by 5 judges. 27 से हम लोग शुरू करते हैं. 27 में पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस. ठीक है, क्या होता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस? तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा या यूनियन के द्वारा लिया जाता है और वो किसी एम्प्लॉइज के राइट को वायलेट करता है. ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस. अभी इसी में सवाल पूछ रहा है प्रोवाइड एग्जाम्पल फॉर सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड. ये बोल रहा है
एग्जाम्पल प्रोवाइड कीजिए जो कि सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। तो सेकंड शेड्यूल में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पहला है थ्रेटनिंग वर्कर्स विद डिसमिसल और क्लोजर इफ दे ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन। आप अगर किसी भी तरीके से वर्कर्स को थ्रेट करते हो कि तुमने ट्रेड यूनियन को ज्वाइन किया ना तो मैं तो धंधा ही बंद कर दूंगा, सड़क पे चले जाओगे या तुमको निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, जो कि शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। दूसरा क्या है, हरासिंग और कंट्रोलिंग एम्प्लॉय हु ज्वाइन अ यूनियन। अगर किसी ने ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉयर के कहने के बावजूद भी, ठीक है, मना करने के बावजूद भी, तो अगर आप उसको हरास करते हो या उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। तीसरा है बुलिंग एम्प्लॉयज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, ठीक है। आप लीगल स्ट्राइक करने से भी अगर कोई पार्टिसिपेट करता है एम्प्लॉय तो उसको आप बुलिंग कर रहे हो, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है। फायरिंग एम्प्लॉयज ऑन फॉल्स एलिगेशन, किसी एम्प्लॉय के ऊपर आप फायर हो रहे हो, ठीक है, जो कि वो एलिगेशन जो है फॉल्स है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। अगला है रिफ्यूजिंग टू बार्गेन कलेक्टिवली विद ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के साथ आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। अगला है डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट इलीगल प्रैक्टिस। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए किसी इलीगल प्रैक्टिस का रिपोर्ट करता है, ठीक है, हाँ, तो वो भी जो है इलीगल ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। तो इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में। किसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेकेंड शेड्यूल में लेबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, ठीक है। अगला सवाल है आपका, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो रजिस्ट्रार का रोल क्या होता है, रजिस्ट्रार जो होता है ना ट्रेड यूनियन का, ठीक है, रोल किधर गया, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रजिस्ट्रार एंड रजिस्टर एंड सेफगार्ड ट्रेड यूनियन। द रजिस्ट्रार कैन ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट ए रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट, ठीक है, हर स्टेट के लिए जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट करती है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार टू परफॉर्म रजिस्ट्रार ड्यूटी, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो छुट्टी पर है, ठीक है, तो उसके लिए कोई और चाहिए ना, तो एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार का भी जो है अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। अगला है एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार कैन एक्सरसाइज द रजिस्ट्रार्स पावर एंड फंक्शंस विद इन द लोकल लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी रोल क्या है रजिस्ट्रार का, द रजिस्ट्रार्स रोल इज टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर, ठीक है। तो रजिस्ट्रार का रोल यही है कि वो अपना क्या बोलते हैं इसको, ये ट्रेड यूनियन को जो है रजिस्टर करे। अब फिर बात वही आ जाएगी कि रजिस्टर कैसे होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस बताइए। तो प्रोसेस क्या है कि कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए। 7 मेंबर के बाद आपको ट्रेड यूनियन रजिस्टर के लिए एक एप्लीकेशन बनाना है। उस एप्लीकेशन के साथ 4-5 डॉक्यूमेंट लगाना है। एक डॉक्यूमेंट में आपका ट्रेड यूनियन का नाम और एड्रेस लिखना है, दूसरे में ट्रेड यूनियन का नाम, ट्रेड यूनियन में सम्मिलित मेंबर के नाम और उसके एड्रेस लिखने हैं। फिर एक में आपके ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग रूल्स वगैरह लिखना है, ठीक है। अगर कोई आपके पास पहले से फंड वगैरह है, एसेट्स वगैरह है, तो उसका जिक्र करना है। इसके बाद आपका वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार को दे दोगे। रजिस्ट्रार जो है आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं सेटिस्फाई हूँ मैं इसके ये एप्लीकेशन से, तो फिर आपका जो है ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर देगा, सिंपल, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि नहीं ट्रेड यूनियन का जो एप्लीकेशन है वो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। ये सब पावर रजिस्ट्रार के पास होता है। अभी अगला सवाल है
डिस्कस द रोल ऑफ द वर्क कमिटी इन प्रोमोटिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो वर्क कमिटी के रोल के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वर्क कमिटी प्रोमोट्स हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, निगोशिएटिंग एंड प्रोवाइडिंग आइडियाज टू मैनेजमेंट। तो ये जो वर्क कमिटी है ना, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। अगर किसी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अराइज हुआ है तो दोनों के बीच निगोशिएशन का काम करता है वर्क कमिटी, और जो है मैनेजमेंट को अपने आइडियाज़ देता है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेथड फ्रॉम विच वर्क कमिटी प्रोमोट हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। कौन कौन से मेथड अपनाता है वर्क कमिटी जिससे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हार्मोनियस और पीसफुली जो है उसके प्रोसीजर को जो है प्रमोट कर पाता है। तो सबसे पहला है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेता है। वर्क कमिटी रिजॉल्व डे टू डे डिस्प्यूट, ठीक है। दूसरा है निगोशिएशन, तीसरा है प्रोवाइडिंग आइडियाज़, एंड अगला है मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। तो ये सब जो है क्या बोलते हैं, वर्क कमिटी जो है इस सब मेथड से किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में हारमोनियसली काम को फंक्शन कराता है, ठीक है, प्रमोट करता है उसको। अगला सवाल है आपका डिफाइन स्ट्राइक एंड डिस्कस द प्रोसीजर एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर इनिशिएटिंग ए स्ट्राइक, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्ट्राइक के बारे में बताइए, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन बताइए कि कब कब आप जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्राइक क्या होता है, तो द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 डिफाइन स्ट्राइक एज when more than half of an industry worker take a casual leave on the same date, or in another words when employees collectively stop working to protest their employer, ठीक है। जो एम्प्लॉय का ग्रुप है वो कलेक्टिवली अगर अपने काम रोक देता है प्रोटेस्ट के तौर पर एम्प्लॉयर के साथ, तो उसको बोला जाता है स्ट्राइक, ठीक है। अभी प्रोसीजर क्या है स्ट्राइक करने के, तो प्रोसीजर है वर्कर मस्ट गिव देयर एम्प्लॉयर 14 डेज नोटिस बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक, ठीक है। ये प्रोसीजर है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्राइक पर अगर कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला है कि एम्प्लॉय जो है 14 दिन पहले अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देगा कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, ठीक है। द नोटिस इज वैलिड फॉर अप टू 60 डेज, उस नोटिस का जो वैलिडिटी है वो 60 दिन तक रहेगा। वर्कर्स कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, कुछ समय तक जो है वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। कब कब, ड्यूरिंग एंड अप टू 7 डे आफ्टर आर्बिट्रेशन। अगर आप दोनों का डिस्प्यूट था और वो आर्बिट्रेशन में गया है तो आप आर्बिट्रेशन के दौरान का 7 दिन या उसके आगे का भी 7 दिन तक आप जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग एंड अप टू 60 डेज आफ्टर बिफोर अ कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रायल, आपका डिस्प्यूट था, आपने आर्बिट्रेशन में गए, आप कोर्ट में गए, तो उसके 60 दिन के आसपास आप जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला है रेस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक करने के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है स्ट्राइक्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड अप टू 7 डेज आफ्टर। आपका अगर कोई भी डिस्प्यूट कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गया है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है उस समय के लिए, ठीक है। और जैसे ही आपका कंसिलिएशन का ऑर्डर आया उसके 7 दिन तक, ठीक है, तो कंसिलिएशन पीरियड के खत्म होने के 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका मामला मान के चलो आर्बिट्रेशन में गया था तो आप 60 दिन तक जो है आर्बिट्रेशन के आसपास स्ट्राइक नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। अगला है स्ट्राइक्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ व्हेन सेटलमेंट और अवार्ड इज इन इफेक्ट, ठीक है। अगर सेटलमेंट का काम चालू है आप दोनों में, ठीक है, या अवार्ड का बात चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो इस दरमियान भी आप जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। अगला सवाल है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का इम्पोर्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेटलमेंट होता क्या है, ठीक है। तो सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, ठीक है, जिस मुद्दे पर उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा डिस्प्यूट था जिसको हमने दोनों बैठ के रिजॉल्व किया, तो रिजॉल्व करने के कुछ तो होंगे ना टॉपिक कि भाई हम इस बात से सहमत हैं, तो जिस बात से हम सहमत होते हैं वो सेटलमेंट कहलाता है, ठीक है। तो सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दैट रिजॉल्व एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, जिसके कारण जो है आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, ठीक है, वो एग्रीमेंट सेटलमेंट कहलाता है। सेटलमेंट कैन बी रीच्ड थ्रू कंसिलिएशन प्रोसीडिंग और एज अ सेपरेट रिटर्न एग्रीमेंट। अगर चाहे तो दोनों पार्टी सेपरेट रिटर्न एग्रीमेंट से भी सेटलमेंट कर सकता है, या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से आप लोग सेटलमेंट कर सकते हो। वाई आर सेटलमेंट इम्पोर्टेंट? सर हाँ हाँ, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंस है? आर्बिट्रेशन का जो है ना, जैसे आप किसी इसमें गए, क्या बोलते हैं इसको, किसी एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो आपने अपने आप जब जाते हो कहीं पे तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर बनता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है आप दोनों में कि कहाँ कब से काम शुरू कर रहे हो, कौन कौन से शर्त आप मानने को तैयार हो, आपके वो कौन कौन से शर्त मानेंगे, राइट। तो ये बनता है ना स्टैंडिंग ऑर्डर वहाँ पे काम करने के दौरान। तो उसमें एक क्लॉज डाला जाता है कि हमारा डिस्प्यूट अगर अराइज होता है फ्यूचर में तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज आपने पहले डाल दिया है तब आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो अपने मामले लेकर, ठीक है। अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है तब आप मीडिएशन में जा सकते हो, कंसिलिएशन में जा सकते हो, लेकिन आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। होता दोनों में यही है कि भाई दोनों पार्टी एक इंडिविजुअल को हायर करता है जो क्या बोलते हैं, मतलब दोनों पक्ष से कोई मतलब नहीं रखता। हाँ हाँ, थर्ड पार्टी, करेक्ट। तो थर्ड पार्टी कंसिलिएटर होता है, या मीडिएटर हो सकता है, या आर्बिट्रेटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में मेन फर्क ये है कि कंसिलिएशन में जाने के लिए पहले से कोई क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन में जाने के लिए आपको पहले से मेंशन करना पड़ेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा फ्यूचर में तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तभी आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन दोनों को इक्वल अथॉरिटी है ये अवार्ड डिसाइड करने का। जो भी आर्बिट्रेटर होगा या कंसिलिएटर होगा वो अपना अवार्ड पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा। अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ अपील में, फिर लेबर कोर्ट है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। ये जरूरी नहीं है कि आप कंसिलिएटर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आपके पास रेमेडी हमेशा है अपील का, ठीक है। थैंक यू। अभी पूछ रहा है वाई आर सेटलमेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये जो सेटलमेंट है इम्पोर्टेंट क्यों है, ऐसा पूछ रहा है। तो आईडी एक्ट जो है हेल्प करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच। दूसरा है प्रिवेंट इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्शन जो है, द आईडी एक्ट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डिसरप्टिव इंडस्ट्रियल एक्शन सच एज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, प्रोटेक्ट वर्कर। तो ये बोल रहा है सेटलमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सेटलमेंट जो है ना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम करता है, इंडस्ट्रियल एक्शन अगर कोई हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर को, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके बाद अगला है आपका कि ये 3 मेन मेथड ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सवाल में पूछ रहा था आपसे। तो ये 3 जो है मेन मेथड है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। पहला क्या है, कंसिलिएशन, दूसरा है आर्बिट्रेशन, तीसरा है एडजुडिकेशन। कंसिलिएशन का मतलब थर्ड पार्टी को बुलाइए, ठीक है, आप दोनों अपनी बात रखिए, वो जो बोलेगा वो फैसला। आर्बिट्रेशन का क्या है, आपका आगे एग्रीमेंट पहले हुआ था, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था, आप दोनों आर्बिट्रेशन में जाने के लिए तैयार हैं, दोनों जाइए, एक थर्ड पार्टी को
पकड़िए, जो इम्पार्शल हो, ठीक है, उसको आर्बिट्रेटर कहा जाएगा। वो जो ऑर्डर देगा आपका हो गया। इसके बाद है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब है कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में कौन सा, लेबर कोर्ट आप जा सकते हो, या आप जा सकते हो ट्रिब्यूनल में, या आप जा सकते हो नेशनल ट्रिब्यूनल में। तो ये होता है एडजुडिकेशन, ठीक है। सिचुएशनल क्वेश्चन लेबर लॉ के जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है आपके लिए, मिस्टर एक्स ए वर्कमैन रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हैज़ कमिटेड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ये है आपका सिचुएशन। सवाल पूछ रहा है ए, डज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड है क्या, बताइए। आप लोगों से पूछूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो। अरे माइक ओपन करके बोल सकते हो यार। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड है ना। हाँ प्रोविडेड है और 1000 पेनल्टी है। हाँ, पेनल्टी का तो इसमें नहीं बताया है, लेकिन ठीक है, प्रोहिबिटेड है वो, ठीक है। यस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आर प्रोहिबिटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा, अभी इसमें होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019, ठीक है। इसके बाद जो है अगला आपका बी पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। करेक्ट, आरती ने जवाब दिया था। क्या है पेनल्टी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। तो 1000 जो है फाइन लगा सकते हैं और 6 महीने तक का जेल हो सकता है। कोई भी बंदा जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को कमिट करता है, ठीक है, उसके ऊपर 6 महीने तक की जेल की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। अभी दूसरा है आपका क्वेश्चन सिचुएशनल। मिस्टर जेड गिव्स फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ठीक है। मिस्टर जेड जो है वो फाइनेंशियल एड मतलब वित्तीय सहायता देता है किसी इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है, डज इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज पनिशेबल। बताइए कोई। यस सर। करेक्ट। Yes, illegal strikes and lockout are punishable under the Industrial Relation Code 2019, ठीक है। अगला सवाल है आपका इसमें बी, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू द इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। तो क्या है, तो इसमें भी है आपका 6 मंथ और इम्प्रिजनमेंट जो है 6 मंथ है, और आपका फाइन जो है एक्सटेंड हो सकता है 1000 तक, ठीक है। या दोनों चाहे तो कोर्ट दोनों इम्पोज कर सकता है। अगला सवाल है आपका, मिस्टर ए एन एम्प्लॉयर फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ये है सिचुएशन। सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसका जवाब है, स्टैंडिंग ऑर्डर का जो ड्राफ्ट है उसको सबमिट करने के लिए 6 मंथ मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है ना सबमिशन के लिए, तो वो है 6 मंथ। दूसरा सवाल है आपका, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर हु फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 3। आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या पेनल्टी मिलेगा अगर 6 मंथ के अंदर कोई बंदा जो है अपना ड्राफ्ट जो है स्टैंडिंग ऑर्डर का वो सबमिट नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है आपका, फाइन जो है 5000 तक का लगाया जा सकता है, ठीक है, और इसमें इम्प्रिजनमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है ये ऑफेंस, मतलब वो 5000 नहीं भरा है, ठीक है,
और वो कंटिन्यू चलता जा रहा है तो 200 एवरी डे के हिसाब से उसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका, मिस्टर बी एन ऑक्यूपायर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री will be held responsible and equally liable for breaching the law under the Factories Act 1948। सवाल पूछ रहा है आपसे, डिफाइन ऑक्यूपायर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट आप लोगों का हटा दिया गया है। ठीक है, तो इससे सवाल लेने से कोई मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं सीधा। अगला सवाल है आपका, XYZ ट्रेड यूनियन applies for registration of the trade union. This trade union submitted all the required document. Still the certificate of registration was refused. ये सिचुएशन है। सवाल आपसे पूछ रहा है, explain the legal requisites for providing certificate of registration or the cancellation of the registration of the trade union। तो इसका जवाब है आपका, लीगल रिक्विजिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। इसमें पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए है, सेक्शन 4 में प्रावधान किया गया है कि 7 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तब आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। दूसरा इसमें बताया है कि आपके एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था। एप्लीकेशन के साथ आपको नाम और एड्रेस लिखना है ट्रेड यूनियन का। ठीक है, इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ठीक है, सारे मेंबर का भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना है कि आपने कौन कौन से रूल को कंप्लाई किया है, वो सारे डिटेल उसमें लिखना है। फिर आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है, अगर आपके पास है डिटेल तो उसका भी स्टेटमेंट आपको लगाना है एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो ये अगर आप देते हो रजिस्ट्रार को तो रजिस्ट्रार जो है आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे सकता है। ठीक है, कैंसिलेशन कब कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन? तो कैंसिलेशन के लिए प्रावधान किया गया है कि कोई भी आपने अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है और वो बाय फ्रॉड किया है या किसी मिस्टेक के कारण हो गया आपका, तो ये भी कैंसिल करने का जो है एक मेन रीजन हो सकता है। दूसरा है ट्रेड यूनियन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, ये भी रीजन हो सकता है। तीसरा है विलफुली कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन के किसी प्रोविजन को आपका जो ये है एप्लीकेशन वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो भी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। द यूनियन हैज़ अलाउड नॉन एलिजिबल पर्सन टू बिकम मेंबर। ठीक है, यूनियन जो है किसी ऐसे पर्सन को मेंबर बनाया है जो एलिजिबल नहीं है लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा सवाल था इसी क्वेश्चन का, रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पार्टी फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ये बोल रहा है कि मान के चलो हमने ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराया था, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो इससे आपका नुकसान तो होगा ना, तो आपके नुकसान भरपाई के लिए कोई रेमेडी है क्या, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है इफ़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज रिफ्यूज्ड, ठीक है, द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, अगर उसका ट्रेड यूनियन रिफ्यूज हो गया हो या कैंसिल कर दिया गया हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपील करे ऊपर के कोर्ट में। ठीक है, तो अपील टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये ओल्ड प्रोविजन के द्वारा बताया गया है। ठीक है, आपका अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ना, तो उसमें जो सेक्शन होगा उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। लेकिन आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो सेक्शन आपको याद नहीं रखना है किसी का। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यहाँ पे 60 साल का वकील जो है ना प्रैक्टिस करता है, उसको भी सेक्शन याद नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको
आपको जो एग्जामिनर है वो ये मान के चलता है कि बच्चे हैं, इनको सेक्शन क्या याद रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गलत सेक्शन लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, अलग ही नुकसान है। तो इससे अच्छा है कि सेक्शन ना लिखो। आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है, विदाउट सेक्शन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ट्रेड यूनियन पूछा है, आप लिख सकते हो ना ट्रेड यूनियन क्या है। जरूरी है सेक्शन डालना, ठीक है। तो सेक्शन मत लिखना। हमारे टाइम पे सरला मैडम होती थी, कुछ बच्चों को नहीं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर हो, वो प्रिंसिपल रही हैं किसी और लॉ कॉलेज में, फिर हमारे यहाँ आई थी पढ़ाने। तो हमेशा कहती थी कि आप लोगों को क्यों सेक्शन के पीछे भागना है। आप वकील हो, 20-20 साल वकील करते हैं प्रैक्टिस, तब सेक्शन याद नहीं होता। तो एग्जामिनर जो आपका चेक करेगा तो उसको दिमाग नहीं रहेगा कि ये कल के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के, उनको क्या सेक्शन पता रहेगा। तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, बस हो गया। एग्जामिनर उतने में खुश हो जाएगा। सेक्शंस की उम्मीद आपसे न करते हैं, ना आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप जो ये अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें सेक्शन जो दिया है ना, एक तो ये पुराना है और अपने को याद भी नहीं रखना है। अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई अपील आप कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, ऊपर के कोर्ट में। तो अब यहाँ पे अपील कहाँ करना है आपको, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, लेबर कोर्ट बनाया गया है, हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, हमारे पास नेशनल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी अगर हमारा काम नहीं होता है, ठीक है, तो हम उससे ऊपर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहाँ भी नहीं होता है तो हम नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपील का आपके पास रास्ता खुला है विदिन 60 डेज। जब आपको कैंसिल कर दिया गया आपके रजिस्ट्रेशन को, या आपको रिफ्यूज कर दिया गया रजिस्ट्रेशन करने से, उसके कैंसलेशन से 60 दिन तक आपको जो है मिलता है कि आप अपील में जा सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा रेमेडी, कि आप रिट पिटीशन डालो, ठीक है। रिट पिटीशन के अंदर आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आपको बता दूं, हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 226 में ये पावर है कि वो अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके न्याय हित में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में ये पावर है कि वो न्याय हित में सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है। तो नेचुरल जस्टिस का जब भी वायलेशन होगा, आपके पास आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है। तो रिट पिटीशन में भी आप जा सकते हो। तो ये दो रेमेडी जो है, कैंसिलेशन और आपका रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है आपका, विश्व कल्याण कामगार संगठना applied for recognition. It has 32% membership of employees of the industry. Z, another trade union, Sharmik Kamgar Sangh, has 29% of membership of employees of the same industry. Z, both have applied for the recognition. ठीक है, ये विश्व कामगार संगठना है, इसके पास 32% मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉई है, ठीक है। और एक है अनदर ट्रेड शार्मिक कामगार, जिसका नाम जेड है, उसके पास 29% मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सेम इंडस्ट्री में, उसका अलग संगठन है, यूनियन है। सवाल पूछ रहा है आपसे, विच ट्रेड यूनियन विल गेट द रिकॉग्निशन। दो ट्रेड यूनियन बनाए हैं लोग मिल के, एक के पास 32% बनता है, दूसरे के पास 29% है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इसका जवाब है, इन दिस केस विश्व कामगार संगठना विल गेट द रिकॉग्निशन बिकॉज इट हैज 32% मेंबरशिप ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है, विच इज हायर देन शार्मिक कामगार संघ विच हैव 29% मेंबरशिप। समझ में आया। अगला सवाल है, जो सवाल पूछा है बस अपन वही ध्यान दे। अभी वाई भी पूछा है, क्यों पूछा है, ठीक है, क्यों, तो अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस,
the trade union with the largest membership among the employee of the industry is given recognition. ओके ओके, ठीक है। हाँ तो सही है ना, ये एक्ट जो है, अब आपका एक्ट का नाम नहीं याद होगा तो भी आप लिख सकते हो कि लीगल प्रोविज़न जो है वो ये बोलता है कि जिसका भी मेंबरशिप ज़्यादा होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगा, उसको जो है यूनियन का रिकॉग्निशन मिलेगा। सिंपल है। दूसरा सवाल पूछ रहा है आपसे, स्टेट द लीगल क्राइटेरिया टू प्रोवाइड द रिकॉग्निशन टू द ट्रेड यूनियन बाय इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर तो MRTU एंड PULP एक्ट था, ठीक है, जो ये काम करता था, तो इसको तो अभी हटा दिया गया इस आपके सिलेबस से, ठीक है। लेकिन फिर भी लीगल प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए कि मेजोरिटी जो है उसको मेंबरशिप मिलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास मेजोरिटी होना चाहिए। दूसरा, एप्लीकेशन करना होगा आपको रिकॉग्निशन का, ठीक है। फिर आपका मेंबरशिप का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर कोई आपके अपोजिट में कोई हायर मेंबरशिप वाला रिवल नहीं होना चाहिए, अपोजिट पार्टी आपसे हायर मेंबरशिप नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने फुलफिल कर दिया है सारे लीगल रिक्वायरमेंट तो फिर आपको जो है मिल जाएगा रिकॉग्निशन। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया पूछ रहा था, ठीक है। अगला सवाल है आपका, सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, एक सेकेंड। अगला सवाल है, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू मिस्टर, सॉरी, अगला सवाल है, इन एन इंडस्ट्री मिस्टर बी वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, द एम्प्लॉयर चेंज द कंडीशन ऑफ सर्विस applicable for him related to one pendency of proceeding of industrial dispute and repeatedly transferred him to different location due to his activeness। ये है आपका सिचुएशन। सवाल पूछ रहा है, what remedy is available to Mr. B as an employee of the industry as per Industrial Dispute Act। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को इंडस्ट्रियल कौन सा था, नया एक्ट बना दिया है ना, IRC शायद बना दिया है, ठीक है। तो उसमें, ठीक है, तो एक्ट का नाम तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो क्या है रेमेडी पूछ रहा है आपसे, तो इसका है फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चेंज इन सर्विस कंडीशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, ये सेक्शन 33 में बताया गया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एन एम्प्लॉयर कैन नॉट बी यूनिलैटरली ऑल्टर द कंडीशन ऑफ सर्विस और ट्रांसफर एन एम्प्लॉई विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है, अब कंसर्न अथॉरिटी कौन हो सकता है? कंसर्न अथॉरिटी हो सकता है कंसिलिएशन ऑफिसर या कंसिलिएशन बोर्ड या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सिंस द एम्प्लॉयर चेंज द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड ट्रांसफर मिस्टर बी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट विदाउट अप्रूवल, दिस एक्शन कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है, अब रेमेडी क्या है मिस्टर बी के पास? Mr. B can file a complaint under section 33A before the industrial tribunal or labor court, ठीक है, claiming that the employer violated the provision of section 33। ठीक है, स्वाभाविक है किसी भी लॉ में अगर किसी प्रोविज़न के बारे में बताया गया है, ठीक है, अगर आप उस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते हो तो वायलेशन है उसका। अगर वायलेशन है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो, तो यही रेमेडी उसके पास है। ठीक है, अभी तीसरा है इसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, द रिपीटेड ट्रांसफर्स ड्यू टू मिस्टर बीज एक्टिवनेस इन द ट्रेड यूनियन कुड बी कंसिडर्ड एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, मिस्टर बी कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 25T 25U अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेज।
तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तहत भी ये जो है वायलेशन है मिस्टर बी के राइट का, ठीक है, और इसके तहत भी वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो यही है आपका। फिर दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा है, एक्सप्लेन लीगल प्रोविजन provided to some employees amongst various trade unions to protect the right as per Industrial Dispute Act। तो इसका है लीगल प्रोविजन क्या क्या है, तो राइट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये सेक्शन 33 में है, तो आपको 33 याद नहीं रखना है। सेक्शन 33 इंश्योर्स दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग और एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट the employer is restricted from altering the condition of service of employees or punishing them without prior permission from the authority. This provision protect employee from victimization during disputes। ठीक है, तो ये राइट है। अगला है दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि भाई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है तो ये सामने वाला जो एम्प्लॉई है उसके राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, तो इसके तहत भी वो जा सकता है। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। सेक्शन 36 अलाउज एम्प्लॉई टू रिप्रेजेंट बाय देयर ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसेस, प्रोवाइडिंग देम ए वॉइस इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। ठीक है, इसके बाद है रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ का प्रोटेक्शन। अगला सवाल है आपका, इन PQR फैक्ट्री द अप्रेंटिसेस आर अंडरगोइंग द ट्रेनिंग, देयर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर आर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, देयर वर्किंग टाइम इज नॉट फिक्स्ड। ये है सिचुएशन। सवाल आपसे पूछ रहा है, explain the protection provided to all the apprentices under the Apprentice Act 1961। हालांकि ये भी एक्ट नहीं है आप में, ठीक है, फिर भी सवाल पूछा है तो पढ़ के कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, बस ये अप्रेंटिस एक्ट का ही है, ठीक है, तो ये जाने दो, इसको पढ़ के कोई मतलब नहीं, आप में है ही नहीं सिलेबस में तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा किसी के पास और है क्या सिचुएशनल, तो हम लोग वो कवर कर लें। जो नहीं आएगा उसमें माथा पच्ची करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर भेजा है मैंने। आपने भेजा है किधर? हाँ, ओके ओके। पर सर आंसर्स नहीं आते। अरे यार ये तो गजब है। चलो ठीक है, दिमाग लगाएंगे और क्या, कम से कम इधर दिमाग लगा के हल तो करेंगे। कितने दिमाग हैं हमारे पास अभी, देखो एक सेकेंड, हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 8 5 13 दिमाग है हमारे पास, आंसर हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहला सवाल है, लेकिन ये आने के चांसेस है क्योंकि ये नया वाला है, ठीक है, नया नहीं है, इसमें भी ID एक्ट वगैरह लिखा है, ठीक है, देखते हैं। चलो पहला सवाल है आपका, द इंडस्ट्रियल कोर्ट ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू द इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन एज अ रिकॉग्निशन यूनियन, बट भारतीय कामगार सेना हैज मोर मेंबरशिप दैन द इंडियन वर्कर एसोसिएशन। व्हाट रेमेडी अवेलेबल टू भारतीय कामगार सेना। ये जो इंडस्ट्रियल कोर्ट ने रिकॉग्निशन ग्रांट किया है किसको, इंडियन वर्कर एसोसिएशन को, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मेंबरशिप किसके पास है, भारतीय कामगार सेना को, ठीक है। तो मतलब इंडस्ट्रियल कोर्ट ने गलत किया है, बराबर ना, तो गलत किया है तो उसके लिए वो अपील में जा सकता है, रेमेडी में, और क्या, सही बोल रहा हूं मैं? अरे ये एक्ट जो बोलता है जिसके पास ज़्यादा मेंबरशिप होगा उसी को मिलेगा, उसी के यूनियन को मेंबरशिप मिलेगा ना, रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने यहाँ गलत किया है, जिसका मेंबरशिप ज़्यादा था, भारतीय कामगार सेना का मेंबरशिप ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन मिला दे दिया है किसको, इंडियन वर्कर एसोसिएशन को। तो भारतीय कामगार सेना तो जा सकता है ना अपील में, बराबर बोल रहा हूं मैं? यस सर, करेक्ट है। इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा है, कामगार उत्कर्ष, लिखो मत यार, मैं PDF पढ़ रहा हूं, कौन से ईयर का है ये यार, ईयर जाने दो, अभी कल एग्जाम है, जो मिल रहा है वो पढ़ लो, ठीक है
अल्टरनेटिव। हाँ देखो, ये अगला सवाल है आपका, कामगार उत्कर्ष सभा ए रिकॉग्निशन यूनियन, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, कौन? कामगार उत्कर्ष सभा। असिस्टेड इलीगल स्ट्राइक इन एबीसी अंडरटेकिंग एंड अप्लाइड फॉर सीकिंग रिकॉग्निशन इन XYZ अंडरटेकिंग। सवाल अच्छे से समझना पड़ेगा। कामगार उत्कर्ष सभा है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, ठीक है, वो उसने एक इलीगल स्ट्राइक किया एबीसी अंडरटेकिंग में, ठीक है, अभी उसने XYZ अंडरटेकिंग के लिए रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया है। विल कामगार उत्कर्ष सभा गेट रिकॉग्निशन इन XYZ अंडरटेकिंग? क्या लगता है आपको? नो, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले इलीगल स्ट्राइक किया था ना एबीसी में, तो उसको नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से भी नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? अरे बोल सकते हो, आपको कल एग्जाम में यही सब याद रहेगा, फिर उधर कोई थोड़ी ना पूछने आएगा आपसे। आपको बुलाएंगे आपसे। एग्जाम का इतना टेंशन मत लो, 100% आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। हमारे टाइम पे कोई ऐसा नहीं होता था तो भी बच्चे पास हो जाते थे। आप तो पास नहीं, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, चिल होके जाना कल मस्त। कैरोलिन मैडम, आपका कौन से फ्लोर पे है कल कॉलेज में? मेरा केईएस कॉलेज में, केईएस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आपने अपने कॉलेज से नहीं लिया? लो नहीं, अरे मैं बोला हमारे कॉलेज में इजी है पास होने के लिए। ओके, नहीं आपको अपने कॉलेज में मिल भी जाता तुरंत इजीली। हाँ, लेकिन सर बोले कि आप दूसरे कॉलेज में ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है। हाँ तो ये जो है ना करेक्ट है कि मतलब उसको जो है नहीं मिलेगा। तो बोलो भर भर के लिखो, पेपर भरो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कम से कम देखो, मैं बता दूं, आपका जो 2 मार्क्स के लिए है ना, उसके लिए कम से कम 5-6 लाइन लिखना, ठीक है, बड़े अक्षर में लिखना। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैं तो अपना रणनीति बताऊं, ठीक है, कि आपको जो अच्छे से आता है ना सबसे पहले वो बनाओ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने बहुत बड़ा आंसर बनाने के चक्कर में आपने सोचा कि नहीं यार पहले 12 मार्क्स का बनाते हैं, और 12 मार्क्स में आपको आता कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप अगर पहले पेज में ही कचरा कर दोगे ना तो एग्जामिनर आपके पीछे वाले पेज पे पलटेगा भी नहीं, और सिर्फ देख देख के 4 1 नंबर दो, 5 नंबर का है 2 नंबर दे दो, 12 नंबर का है 3 नंबर दे दो। नहीं, आपको जो भी सबसे बेस्ट जो आता है ना, आपको सबसे पहले पेज पे उसको डालो कि भाई ये मुझे आता है, भले वो 2 मार्क्स का हो 6 मार्क्स का हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो आपका पहला पेज पलटेगा ना तो आप कितने पानी में हो वो अंदाजा लगा लेता है। इसके बाद वो सारा सवाल नहीं पढ़ता, फिर वो देखता है 6 मार्क्स का है, ऊपर में मस्त बनाया था, 4 दे दो यार, 5 दे दो, 13 मार्क्स का है 10 मार्क्स तो मिलना चाहिए, ऐसा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 मार्क्स का है तो पहले 2 मार्क्स का बना लेते हैं, फिर शॉर्ट नोट है तो फिर शॉर्ट नोट बनाते हैं, फिर लॉन्ग है, फिर ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग आंसर बेहतर आता है लॉन्ग आंसर बनाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं एक जो है 2 मार्क्स का मुझे सबसे बेस्ट आता है, फिर लॉन्ग आंसर मुझे पूरा याद है, तो आप 1-2 मार्क्स का जो है आपको बेहतर आता है पहले वो बनाओ, फिर लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर डाल के बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बनाना ऐसे ही कि जो आपको सबसे मस्त आता हो, सबसे अच्छे से आता हो, वो सबसे पहले उतार देना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो ये जो है उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही एक इलीगल स्ट्राइक में संलग्न था, ठीक है, इसीलिए। इसके बाद दूसरा सवाल है आपका, PQR इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज परचेज्ड बाय द अनदर एम्प्लॉयर, ठीक है, एक इंडस्ट्री है PQR, इसको दूसरे एम्प्लॉयर ने खरीद लिया। द स्टैंडिंग ऑर्डर विच आर एप्लीकेबल टू PQR इंडस्ट्री अंडरटेकिंग विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल और सीज टू बी ऑपरेटिव। ये बोल रहा है PQR इंडस्ट्री जो है वो परचेज कर लिया, किसने? दूसरे एम्प्लॉयर ने। अभी स्टैंडिंग ऑर्डर तो बनता ही, आपको पता है स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, करेक्ट।
तो वो पहले से बना है PQR इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉय का, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि PQR ने जब उसको लिया तो क्या वही कंटिन्यू होगा, ठीक है, या उसको सीज करके फिर से नया बनाया जाएगा? क्या लगता है आपको? कंटिन्यू होगा। एक मेरे हिसाब से वो एक लिमिटेड पीरियड तक जो है ना वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। बाद में कंपनी को लगेगा कि नहीं, अब इसको हम पूरी तरीके से ओन कर लिए हैं, तो हो सकता है वो कुछ आगे पीछे स्टैंडिंग ऑर्डर में जो कंडीशन को है वो कर सकता है, ऐसा हो सकता है ना। सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, लेकिन वो बाद में कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा उसको। हाँ राइट। हाँ, सीज नहीं कर सकता है, करेक्ट है ये। अगला सवाल है आपका, इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग द स्टैंडिंग ऑर्डर्स स्टेट 3 month प्रोबेशन पीरियड, बट इन अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ ए एम्प्लॉय इट वाज 6 month. इज इट पॉसिबल फॉर पार्टीज टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? ये तो सवाल मैं भी नहीं समझा, किसी को समझ में आया तो बताओ। फिर से बोलो। In an industrial undertaking, the standing order states 3 month probation period, but in appointment letter of a employee it was 6 month. Is it possible for parties to enter into contract? नहीं, बट वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर में 3 months लिखा है तो 3 months ही रहेगा ना। हाँ, तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसमें 6 month था, तो ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल फॉर पार्टीज टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो नो ना। यस सर। अभी आप बोले 3 महीना लिखा हुआ है तो 6 month कैसे हो सकता है? और उसे साइन किया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी ना, वो तो रीड करके ही साइन करेगा ना। औरों को क्या लगता है, किसी को है पता? सर उसने पहले स्टैंडिंग ऑर्डर 3 month का है ना, और वो तो 6 month के बाद अपॉइंटमेंट है ना। सो उसने जब साइन सर उसने जब साइन किया था तब 6 month का था। उसके बाद अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ भी चेंज होता है तो उसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को साथ में बैठकर वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तभी वो लागू होगा। तो इसलिए पहले वाला जो 6 month का वही उसके लिए लागू होगा। जब तक वो नया चेंजेस जो है दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर मॉडिफिकेशन नहीं किया था और एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हुआ था, तब तक वो लागू रहेगा। करेक्ट। तो इसमें सवाल पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर पार्टीज टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया ना, उसने 6 महीने का साइन किया था, तब तो ऑटोमेटिक प्रपोजल एक्सेप्टेंस तब हो गया ना, तो एग्रीमेंट हुआ तभी तो वो लगा है। ओके, तो इज इट पॉसिबल, मतलब सही बोल रहे हैं। हाँ, इज इट पॉसिबल, ओके ठीक है। अगला सवाल है आपका तीसरा, एम्पायर इंडस्ट्री अंडरटेकिंग इज क्लोज्ड डाउन ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। एक एम्पायर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ठीक है, वो क्लोज डाउन हो गया क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ गए, ठीक है, जो कि उसके कंट्रोल से बाहर का था। वेदर द वर्कमैन आर एंटाइटल फॉर कंपनसेशन, एक्सप्लेन। कंपनसेशन के लिए तो वैसे भी एंटाइटल होता है ना। यस यस। कंपनसेशन वो एम्प्लॉयर का प्रॉब्लम है कि भाई कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है, उसमें एम्प्लॉय का क्या प्रॉब्लम है? एम्प्लॉय को तो मिलना चाहिए ना कंपनसेशन। यस, तो किसी हाफ द सैलरी तो देते हैं। हाँ, कंपनसेशन के तौर पे मिलेगा आधा सैलरी ऊपर से, और जैसे मान के चलो ले ऑफ दिया, सपोज ऐसे कंडीशन में ले ऑफ ही होता है ना, ले ऑफ हो गया, या मान के चलो आपका रिट्रेंच कर रहा है, कोई भी कंडीशन कोई भी हो, उसमें कंपनसेशन के लिए तो मिलता ही है उसको, तो कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा सवाल है इसका, अगर उसने 1 साल कंप्लीट किया तो 1 year कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ, रिट्रेंचमेंट के केस में ना, हाँ
हाँ 1 ईयर तो कंप्लीट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। दूसरा सवाल है, इन द अबव मेंशन सिचुएशन एम्प्लॉयर इज प्लानिंग टू रीस्टार्ट द क्लोज इंडस्ट्री बट refused to employ senior employees and appointed junior employees. What remedy is available to senior employee? तो ये मेरे हिसाब से क्या किया है पता है, ये केस जो है ले ऑफ का है, ठीक है। क्योंकि ले ऑफ में क्या करते हैं, हमारे पास काम नहीं होता है तो हम निकाल देते हैं, करेक्ट, या अपना जो है वो शॉप बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे मान के चलो हमारे पास कच्चा माल नहीं है या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम बंद कर देते हैं। तो जो भी स्टाफ होता है उनको ले ऑफ कर देते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं उसको तो फिर हम उन्हीं स्टाफ को लेते हैं ना जिनको हमने निकाला होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया है, जूनियर को तो ले लिया है लेकिन सीनियर किसी को नहीं लिया है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या रेमेडी है उसके पास, तो वो रेमेडी है कि वो जाए फिर लेबर कोर्ट के पास, बराबर ना, राइट सर, राइट। लेबर कोर्ट के पास जाएगा कि भाई हम ले ऑफ दिया था और मुझे रख नहीं रहा है वापस से। अगला सवाल है आपका, ए यूनियन हैज गॉट 30% membership of a total employed in the establishment and it applied for grant of recognition. Another union B object on the ground that it has got 35% membership of total amount of worker, ठीक है, that establishment. अब सवाल पूछ रहा है to which authority the application for grant of recognition has to be made. रजिस्ट्रार ना, राइट। रजिस्ट्रार यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस अथॉरिटी के पास आप रिकॉग्निशन के लिए जा सकते हो एप्लीकेशन करने, तो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं हम लोग। दूसरा है सवाल, गिव एनी 2 ड्यूटीज ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन। 2 ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड के, तो इसका मैं बता देता हूँ। हाँ बोलिए। वो क्या लिखे सर? हाँ मैं वो बता देता हूँ। एक कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकता है। अनरिकॉग्नाइज्ड के ये जो है अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन की जो ड्यूटी है वो ये है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है तो उसको वो क्या बोलते हैं उसको रेज करें, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, और उससे कुछ डिस्कस करना है कलेक्टिव बार्गेनिंग के संदर्भ में तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो है उसके पास ये डिक्लेयर, सब फंक्शंस दोनों के सेम रहेंगे। हाँ मेरे हिसाब से दोनों के करेक्ट उसको नहीं मिलेगा। हाँ करेक्ट। और क्या होता है इस केस में, ऐसे केस में होता क्या है, जैसे मान के चलो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तो उसको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि भाई उसको करेक्ट सिविल रेमेडी मिलेगा। जैसे सिविल में कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको उसमें इम्यूनिटी मिलता है। अगर क्रिमिनल डिस्प्यूट, क्रिमिनल का कुछ मैटर चल रहा है तो उसमें उनको जो है इम्यूनिटीज मिलता है। बाकी फंक्शन दोनों के सेम है, करेक्ट। यस यस। अभी अगला सवाल है, एन एम्प्लॉयर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट टू मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर to the certifying officer. The certifying officer, after hearing the employer and workman, passes an order. The employer is not satisfied with the order of the certified officer. What is the remedy available to the employer? अपील में जाएगा फिर वो। देखो कोई भी ऑफिसर के पास या कोई भी कोर्ट के पास आपका कोई डिस्प्यूट है, अगर वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो उनके ऑर्डर से तो आप अपील में जा सकते हो, सीधी बात, ठीक है। अगर आपको अपील में नहीं जाना है तो आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो रिट पिटीशन डाल के, जो कि हाई कोर्ट के पास 226 में है। मैंने इतने अभी सिचुएशनल देखे, इसमें 2-3 चीज़ें मुझे कॉमन लगा। एक तो पहला सवाल ये था कि भाई 30% वाले को मेंबरशिप मिलेगा या रिकॉग्निशन मिलेगा या 35% वाले को, तो जिसका ज़्यादा है उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने देखा कि भाई किसी का डिस्प्यूट है तो उसके लिए रेमेडी क्या है, अगर ऑर्डर पसंद नहीं आया तो फिर वो अपील में जाएगा, ठीक है।
ये 2-3 सवाल इसमें कॉमन था। अगला इसमें सवाल पूछ रहा है विद इन हाउ मेनी डेज द रेमेडी शुड बी अवेल्ड बाय द एम्प्लॉयर। 16 डेज। हम पढ़े थे ना 60 डेज में कि भाई जैसे ही ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर पास होता है, ठीक है, या जिस दिन से आपका इस केस में ले लो ना अपना रिकॉग्निशन आपका रिफ्यूज कर दिया गया था, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो कितना दिन मिला था अपील में जाने के लिए? 60 डेज। तो यहाँ भी वही डेट लागू होगा और यहाँ पे भी आपको ऑर्डर के हिसाब से जाना है, तो 60 डेज तक आपको जो है क्लेम कर सकते हो अपील में जाने का, ठीक है। तो ये हो गया इधर। इसके बाद ये दिन में भेजते ना तो मैं आंसर निकाल के रखता था, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हैंड टू हैंड हो ही रहा है ना। अभी देखिए अगला सवाल है एक, एन एम्प्लॉयर engaged a workman during his duty hours to do his personal housework. While doing the same, the employee sustained injury on his hand, due to which he was not able to report for duties for 5 days. Will the employer be liable for compensation? ये हम लोगों ने किया था शायद कल या परसों। Yes. He is liable for compensation. करेक्ट, रीजन दे दिया आपने। अगला सवाल, Unfair labor practice है। करेक्ट, अगला सवाल, राइट इज नॉट फेयर और इंजरी तभी हुआ तो he has to pay compensation. करेक्ट। अगला सवाल है एक्सप्लेन द ग्राउंड फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन, ठीक है। ग्राउंड आपको बोल रहा है जो कि आपने बता दिया कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस भी है ये, ठीक है, तो इसीलिए उसको जो है कंपनसेशन लेने का अधिकार है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है मिस्टर ए एन वर्कमैन हु कंटिन्यूज इलीगल स्ट्राइक एंड मिस्टर बी एन एम्प्लॉयर हु कंटिन्यूज इलीगल लॉकआउट। दोनों अड़ गया है। तो एक जो है स्ट्राइक करके बैठा है, ठीक है, एम्प्लॉय, और एक जो है एम्प्लॉयर जो है लॉकआउट करके बैठा है, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है आपसे, अरे यार बोल रहा है कि स्ट्राइक का डेफिनेशन बताओ और लॉकआउट का, ठीक है। तो स्ट्राइक जो है मतलब स्टॉपिंग वर्क, सिंपल। स्ट्राइक का मतलब होता है कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अपने वर्क को स्टॉप कर दिया है, तो वो स्ट्राइक हो गया। और कोई कंपनी अपने स्टाफ सबको निकाल दिया है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लॉकआउट। तो ये है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। है किसी को याद? 6 months and 1,000 penalty. करेक्ट करेक्ट। इसमें है आपका, नहीं अभी शायद नया वाले में बढ़ा दिया है क्या? नहीं, कम कर दिया है शायद। एक सेकेंड है, ये कौन सा कोड था नया वाला अपना? इंडस्ट्रियल रिकॉग्निशन कोड 2020। हाँ, अंडर, क्योंकि अंडर इंडस्ट्रियल नहीं, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ना, इसमें आपका पनिशमेंट कर दिया गया है 1 मंथ, ठीक है, और ये जो फाइन है वो 10,000 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको नया वाले के हिसाब से करना है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ, ठीक है, और फाइन लगाया गया है 10,000। देखिए, द पेनल्टी फॉर एन इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 is a fine of rupees up to 10,000 और imprisonment up to 1 month, ठीक है, और बोथ, मतलब दोनों भी हो सकता है और कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के हिसाब से आप लोग याद रखना तो अच्छा रहेगा। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे
किधर गया, हाँ अगला सवाल है, पेनल्टी तो बता ही दिया। अगला सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट से, तो ये मत करो, फैक्ट्रीज एक्ट का है ही नहीं। तो अगला सवाल है आपका, मिस्टर जेड फेल्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच ही इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड ही रिफ्यूजेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। ठीक है, मिस्टर जेड है, वो कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाला था जो कि जरूरी था, ठीक है, प्रोड्यूस करना, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर MRTU PU। ये भी तो आपके पास है, आपके इसमें एक्ट नहीं है, इसको भी छोड़ो। सवाल अगला है, मिस्टर, पनिशमेंट क्या रहेगा? सॉरी, पनिशमेंट क्या रहेगा इसमें? पनिशमेंट इसमें कौन सा एक्ट है, MRTU, इसमें देखना पड़ेगा मैडम। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रोकने का क्या पनिशमेंट है? वो तो डिपेंड करता है ना कौन से एक्ट में है। ये MRTU PULP आपके इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया, नहीं तो हर ऑफिसर का अपना अपना कोड के हिसाब से रहता है ना। ओके, तो फिर सर्च करके देखो ना। ये एक्ट है ही नहीं आप में, तो क्यों लोड लेने का दिमाग पर। MRTU PULP एक्ट नहीं है आप में, हटा दिया गया है इसीलिए। ठीक है, अगला सवाल है, मिस्टर बी एन एम्प्लॉयर हु क्लोजेस डाउन एन अंडरटेकिंग विदाउट गिविंग एनी नोटिस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, एक मिस्टर बी है, वो कंपनी का मालिक है, वो अपने अंडरटेकिंग को बंद कर दिया, ठीक है, बिना नोटिस दिए। नोटिस देना पड़ता है ना 60 दिन पहले ही, राइट, कि भाई मैं बंद कर रहा हूं करके, कंपनी के ये वर्कमैन को भी और आपके उसको भी, किसको, अपना अथॉरिटी को भी। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोजर का मतलब होता है भाई आपने अपना शटर बंद कर दिया किसी एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा है पेनल्टी फॉर क्लोजर विदाउट नोटिस, हाँ ये जरूरी है, पेनल्टी फॉर क्लोजर विदाउट नोटिस। तो पेनल्टी है आपका 6 मंथ, ठीक है, और 5000, 6 महीने तक का जेल है और 5000 तक का जुर्माना है। ठीक है।